نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے، والیوم 1، اس کا ایک کتاب یا اس کا ایک موضوع کتاب السلام سے ہم آج اپنے سبق کا آغاز کریں گے، اور اس نئے موضوع کے تحت آنے والی کچھ احادیث اور آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار نعم و کرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پچھلی مجلس میں ہم نے جس موضوع کے اوپر بات کی تھی، جو ہمارے سامنے موضوع تھا، وہ تھا خواب کے بارے میں، اور خواب کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک دلچسپ موضوع ہے، اور اس میں بھی ہمیں ہمارا دین بہترین رہنمائیاں ہمیں دیتا ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھے تو اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اور خواب کی اہمیت جو ہے یا خواب کی ہماری زندگی میں جو رول ہے، اس کو بھی ہم نے مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اگر ہم ریاض الصالحین کی یہ جو پوری جلد ہے اس کو ہم دیکھیں تو اس میں مختلف موضوعات کو جمع کر کے باب کی شکل میں، اور پھر بہت سارے مختلف باب جو ہیں، چیپٹر جو ہیں، ان کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل میں یا ایک جلد کی شکل میں تذکرہ کیا یا جمع کیا گیا۔ جیسا کہ کتاب الآداب ہم نے دیکھا، کتاب کتاب عدم طعام تھا، عدم طعام کا کھانے پینے کا، کتاب اللباس تھا، اسی طرح سے کتاب آداب النوم، ٹھیک ہے، کتاب السلام۔ تو اس طرح سے یہ جو باب ہم ابھی شروع کریں گے، یہ موضوع جو ہے یہ کتاب السلام ہے۔ کتاب السلام، جیسا کہ نام سے ہمیں یقیناً اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ سلام کا مطلب السلام علیکم، جو کہ ہمارا روزمرہ کا ایک کلمہ ہے، جس کو ہم بہت سارے موقعوں پر روزانہ، ہر وقت، ہر جگہ پر ہمارے کام آنے والی یہ چیز ہے، ہمارے کام آنے والا یہ کلمہ ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں۔ اس کلمے کے مطابق، اس کلمے کے متعلق یہ پورا جو بھی ایک سلسلہ ہے، بہت سارے چیپٹر جو ہمارے سامنے آئیں گے، ان کا جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ہم اس کی تفصیل ہمارے سامنے کھلتی چلی جائے گی، اور یقیناً اس میں ہمارے لیے باقی دیگر موضوعات کی طرح اس موضوع میں بھی بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص اور بہت ہی فضیلت والی رہنمائیاں اور باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی، اور یقیناً ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں کو پتہ چلے گا جس میں ہمیں اپنے رویوں کو، اپنے معمولات کو، اپنے جو روزمرہ کی جو بات چیت ہے، اس میں ہمیں کچھ فائن ٹیون کرنے کی یا اصلاح کرنے کی ہمیں کوئی نہ کوئی گنجائش جو ہے وہ ملے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ،
उसकी इस्लाह करने की हम अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। सलाम। ये चैप्टर शुरू करने से पहले या ये मौजू शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ थोड़ी सी बुनियादी बातें जो हैं उनको हम तज़किरा कर लेते हैं। अगरचे ये सारी बुनियादी बातें जो हैं वो हमें यकीनन पता है, इल्म है, इसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन नंबर एक, याद दहानी के तौर पर हम एक दूसरे को याद कराते हैं कि क्या अच्छी बात है, किस तरह से होनी चाहिए। और दूसरा, कोई अहम पहलू जो जहन के किसी गहराई में अगर गिरा हुआ है, पता भी है, वो भी एक रिफ्रेश होकर हमारे जहनों के ऊपर फ्लोट होता है जब, तो फिर हमें एक आसानी मिलती है कि हम उस पर जहाँ तक मुमकिन हो कुछ बेहतरी कर सकें अपने मामलात में। तो इस वजह से हम यहाँ पर अपनी एक दूसरे को याद दहानी के लिए कुछ बातें जो हैं वो इजाफी करते हैं। जैसा कि तस्कर लिखता है अस्सलाम। आम तौर पर हम इसको उर्दू में जब लिखते हैं या बोलते हैं तो वो सिर्फ सलाम कह देते हैं। लेकिन दर हकीकत जब हम अरबी में जितने भी अल्फाज यहाँ पर आएंगे, मैंने हर एक को तो नहीं देखा, लेकिन जितने मेरी नज़र से गुजरे हैं उस सब में सलाम की बजाय अस्सलाम है। सलाम जो है उर्दू में, और अस्सलाम, सो सही तलफ़ुज़ या सही लफ्ज़ जो है वो अस्सलाम है, जिसको हम मुख्तसर करके सलाम कह देते हैं। या अरबिक में भी जब हम एक जुमले में जब ये इस्तेमाल होता है तो वो फिर अरबिक और ग्रामर की जो कवायद हैं उनके मुताबिक वो फिर सलाम पढ़ा जाता है, और अलिफ लाम जो शुरू में है, जो कि इसमें नकरा को इसमें मारफा बनाता है, उसको आवाज़ जो है उसकी पस्त हो जाती है। तो बहरहाल ये टेक्निकल डिफरेंस यकीनन आप सबको पता होगा, लेकिन इसमें मफहूम में एक ख़ास फ़र्क है जिसको हम जब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम वैसे एक पॉइंट जो है उसको हम देखेंगे। तो अस्सलामु अलैकुम के मतलब कुछ अहम बुनियादी मालूमात, उसकी तारीफ, अस्सलाम वालेकुम है क्या, उसकी अहमियत क्या है, उसकी फजीलत क्या है, और इसका तकाबली जायजा कि दूसरे जो दीन हैं या दूसरे जो हमारी कौमें हैं या दूसरे ममालिक जो हैं, गैर इस्लामिक जो मुआशरे हैं, वहाँ पर कुछ मुख्तलिफ तरह के अल्फाज जो हैं वो अस्सलाम वालेकुम के मुतबादल के तौर पर बोले जाते हैं। उनका क्या अनमानी और मफहूम है, इंतहाई मुख्तसर अंदाज में हम इसको आज की नशस्त में समझने की या याद दहानी के लिए हम तज़किरा करेंगे। तो इस अस्सलाम वालेकुम है क्या। अगर हम देखें कि हमारा दीन जो है हमारे इनफरादी और हमारे माशरती या इज्तमाही जो रवैये हैं, हमारे ताल्लुकात हैं, हमारे आपस के मामलात जो हैं, उनके ऊपर बहुत ही डिटेल्ड के साथ, बहुत ही डिटेल के साथ बात करता है, और हमें डिटेल के साथ रहनुमाई देता है। और कई दफ़ा तो ऐसी छोटी छोटी सी बातों के ऊपर हमें बेहतरीन तरह से रहनुमाई मिलती है कि एक रश्क आता है कि किस तरह से हमारा दीन जो है वो हमारे लिए रहनुमाई देता है। और फिर इस दीन का हक है कि उसके मुताबिक फिर हम अपने मामलात को भी दुरुस्त करें। सूरह निसा जो हम अपन कर रहे हैं अपने कुरान के सबक में, वो तो है ही पूरी मुआशरत और मुआशरती मामलात और आदाब और एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी और उनमें मजबूती लाने के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम जो है, हमारे जो मुआशरती रवैये हैं, हमारे जो दूसरों के साथ ताल्लुकात हैं, उनमें एक बड़ा अहम, बड़ा ही कलीदी और बड़ा ही एक मजबूत रोल जो है वो प्ले करता है, जो कि मोहब्बत, अखुवत, बाहमी एतबाद और एक यकजानगी और यकजानियत और और मतलब इत्तेहाद जो है, इन सारी बातों की तरफ हमें लेकर जाता है। तो ये एक ऐसा कलिमा है जो कि इस्लाम को, मुसलमानों को या एक इस्लामी मुआशरे को आपस में जोड़ता है, उसमें एक इत्तेहाद जो है वो पैदा करता है। इसकी बहुत सारी वजूहात या मामलात जो हैं वो हमारे सामने यकीनन हमें उसका अंदाज़ा है। तो और दर हकीकत ये इस्लाम में हम जो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, ये महज दो अल्फाज नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें दुआ भी है और जिसमें अल्लाह का जिक्र भी है, जिसमें दुआ भी है और अल्लाह का जिक्र भी है। अगर हम इसकी तारीफ देखें तो
अस्सलाम वालेकुम ये दो अल्फाज से मिलकर बनता है अस्सलाम और अलैकुम। अस्सलाम जैसा कि तज़किरा हुआ, एक सलाम है और एक अस्सलाम है। सलाम जो नॉर्मली हम उर्दू में फ्लो में बोलते हैं, अ, तो सलाम जो है उसका मानी है अमन और सलामती। अमन, सलामती, हिफाजत, सिर्फ, यानी कि जिसको हम नकरा बोलते हैं। लेकिन अस्सलाम जब अलिफ लाम साथ लगेगा तो ये अल्लाह का नाम जो है वो है, जो कि अल्लाह की एक बहुत ही आला सिफ्त, जिसका तज़किरा हमें बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पर मिलता है। और इसका मतलब बनता है अमन व अमान देने वाला, सलामती देने वाला, हिफाजत करने वाला, हिफाजत पहुंचाने वाला। तो ये अल्लाह ताला के एक सिफाती नाम, जो कि अमन व अमान और हिफाजत और सलामती के पूरी कायनात के लिए, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए, बल्कि पूरी कायनात के लिए अल्लाह ताला अस्सलाम है, अमन व अमान सलामती देने वाला। और उनको स्मूद, ये जो जितना भी लाइफ का निज़ाम एक चल रहा है उसको चलाने वाला है। तो बहरहाल अस्सलाम वालेकुम दो अल्फाज से मिलता है, एक अस्सलाम जिसका मानी है अमनो मान और सलामती देने वाला, और दूसरा है अलैकुम, तुम पर, तुम सब पर। ये अलैकुम जो है वो जमा का सीगा है। अलैका अगर कहेंगे तो वो वाहद का सीगा है। उसकी एक हदीस भी, हम आज जब हदीस का अपना यानी चैप्टर जब शुरू करेंगे तो एक हदीस भी हमारे सामने आ जाएगी कि अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेका, उसमें हमें अंदाज़ा हो जाएगा उसका। तो आम तौर पर हम उसको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, चाहे वो एक बंदा सामने हो या चाहे वो ज़्यादा हो। तो ये हमारा मुस्तअमल जो है वो अस्सलाम वालेकुम, उसकी वजह गालिबन आगे हदीस में पढ़ेंगे। मैं अपनी तरफ से अगर इजाफा करूँ तो ना सिर्फ वहाँ पर इंसान मौजूद होते हैं, बल्कि जिन भी मौजूद हो सकते हैं, फरिश्ते भी मौजूद हो सकते हैं। तो इसलिए हर वक्त जो वहाँ पर कितने, वहाँ पर एक पॉपुलेशन मौजूद है गैर मरई किस्म की, जो कि थोड़ा बहुत या तो शऊर रखती है या हमारी बातों को समझती है। तो हो सकता है गालिबन, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, कि हम जो जमा का सीगा हमारे लिए एक मारूफ है, तो हो सकता है इसकी वजह जो है वो ये हो। तो बहरहाल अस्सलाम वालेकुम दो अल्फाज का मजमूआ, जिसको जमा करें अगर तो इसका मतलब और मानी बनता है अल्लाह ताला आपकी तरफ सलामती भेजे, या अल्लाह ताला आपको सलामती अता करे, अल्लाह ताला आपको हिफाजत अता करे, और अल्लाह ताला आपके ऊपर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। तो इस तरह के बहुत सारे मुख्तलिफ मानी और मफहूम जो है वो अस्सलाम वालेकुम पे बनते हैं। इसकी अहमियत की अगर हम बात करें, हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में ये बड़ी खासमी अहमियत रखता है। ये हमारे ईमान का एक बुनियादी जुज़्व के तौर पर भी हमें हदीस से पता चलता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक ईमान ना लाओ, और ईमान मुकम्मल नहीं होगा जब तक आपस में मोहब्बत ना हो। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जिसे करो तो मोहब्बत पैदा होगी। आप वो क्या है, आपस में सलाम को आम करो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मोहब्बत जो है वो लाजिम करार दिया, ईमान का हिस्सा, और मोहब्बत को एक दूसरे के दरमियान रिवाज देने के लिए सलाम को आम करने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है। और ये हमारे लिए एक इसकी अहमियत जो है उसका हमें अंदाज़ा होता है। इसी तरह से इस्लाम जो है, अस्सलाम वालेकुम, ये इस्लामी तहजीब की पहचान है, ये इस्लामी तशख़्ख़ुस या हमारा इस्लामी मुआशरा जो है उसकी एक अलग पहचान है, अस्सलाम वालेकुम। जबकि दूसरे मुआशरों में क्या बोला जाता है उसको भी जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, बग़ैर किसी मानी और मफहूम के वो अल्फाज हैं, या कुछ ख़ास उसमें कोई दुआ या कोई ऐसे जज्बात या रूहानी किस्म का उसमें तासरात नहीं है। जबकि हमारा अस्सलाम वालेकुम जो है वो ज़िक्र और दुआ से भरपूर एक एक कलमा है, जो हम एक दूसरे को पेश करते रहते हैं। इसी तरह से इंसानों के दरमियान कुर्बत का जरिया है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत पैदा होती है। इस अस्सलाम वालेकुम की वजह से तकब्बुर ख़त्म होता है, क्योंकि इस्लाम में सलाम वालेकुम या सलाम में हम वादे करते चलें कि जब उर्दू में क्योंकि मारूफ है खाली सलाम कहना, तो हम कभी कभी यकीनन मेरे मुंह से बहुत दफ़ा सलाम निकलेगा, तो उसका मानी जो है, असल मानी वो अस्सलाम ही है। तो सलाम में पहल करना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि सलाम करने वाला खुद को बड़ा नहीं समझता, बल्कि आजिज़ी उसमें आती है। तो अस्सलाम वालेकुम जो है वो कहना, ये तकब्बर नहीं बल्कि आजिज़ी की निशानी है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक
बड़ा ही इसमें एक पोलाइट और एक इसमें बड़ा ही नरम सा रवैया जो है वो हमें मिलता है। तो जो किसी को अस्सलाम वालेकुम कहता है तो बड़े उसमें प्यार और मोहब्बत जो है वो झलकती है, और तकब्बर जो है वो उससे दूर दूर तक नहीं भटक सकता। इसी तरह से मुसलमानों की आपस में जो पहचान है वो भी अस्सलाम ही है, अस्सलाम वालेकुम। तो इस तरह से बहुत सारे और मुख्तलिफ मानों में या मुख्तलिफ अंदाज में ये कलिमा जो है ये हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसकी फजीलत के एतबार से ये बड़ा फजीलत वाला कलिमा है, कि अस्सलाम वालेकुम कहने से या सलाम करने से, दूसरों को सलाम करने से 10 नेकियां मिलती हैं। जैसे कि हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अस्सलाम वालेकुम कहा उसको गोया के 10 नेकियां मिल गई, और जिसने उसके साथ वरहमतुल्लाह भी ऐड कर दिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, तो उसको 20 नेकियां मिलेंगी। और जिसने उसके बाद फिर आगे व बरकातहू भी इस्तेमाल कर लिया, ऐड कर दिया, यानी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो उसको 30 नेकियां मिलेंगी। तो 10, 20 और 30, यानी कि ये नेकियों नेकियों का भी एक जखीरा है जो हम रोजमर्रा अपनी अपने नामा अमाल में, अपने जो हमारा सेविंग अकाउंट जो है, डाटा बैंक जो है नेकियों का, उसमें हम जमा करते रहते हैं। तो लिहाजा ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक अजीम सवाब का जरिया भी है, हमें अजीम नेकी और सवाब हासिल करने का एक बहुत आसान सा हमारे पास रास्ता जो है। तो दूसरों को अस्सलाम वालेकुम कहते जाओ और नेकियों समेटते जाओ। इस अल्लाह के नाम का जिक्र भी हमें इसमें मिलता है। इसकी फजीलत के एतबार से अगर देखें तो अस्सलाम जो है उसका एक तो ये है कि अल्लाह ताला आप पर सलामती करे, दुआ है। और दूसरा, अल्लाह के नाम को हम जिक्र करते हैं बार बार, तो गोया कि अल्लाह का जिक्र जो है वो भी इसी जुमले में या इसी कलिमे में छुपा हुआ है, जो कि हम बार बार अदा करते हैं। तो अल्लाह का जिक्र भी है और दुआ भी है। और इसमें हदीस में आता है कि जब मुसलमान सलाम करता है तो अल्लाह के फरिश्ते इसका जवाब देते हैं। तो गोया कि एक और फजीलत यह है कि जब हम सलाम करते हैं तो फरिश्ते जवाब देते हैं। और ऐसा बहुत सारी हदीस हमारे सामने आएंगी, कि जैसे घर के अंदर दाखिल हो जब, तो अगर घर में कोई है भी नहीं, कोई भी नहीं है, तो फिर भी घर के अंदर दाखिल होने के बाद सलाम लेकर दाखिल होना चाहिए। तो यकीनन जैसा कि तज़किरा हुआ कि गैर मरई मखलूक जो है, जिसमें फरिश्ते और जिन वगैरह हो सकते हैं, वो हर जगह पर कसीर तादाद में मौजूद होते हैं। तो हमारा सलाम जो है वो यकीनन अगर कोई आसपास नहीं है तो फिर भी वो सुना जाता है, और उसका जवाब जो है वो भी मिलता है, दिया जाता है। इसी तरह से घरों और माशरे में रहमत का एक जरिया है ये अस्सलाम वालेकुम। हमारा कलमा या हमारा ये कौल जो है, ये नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा दीन जो है हमारा सिखाता है। सूरह नूर की एक आयत हमें कहती है कि घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम करो, ये अल्लाह की तरफ से रहमत, अल्लाह की तरफ से बरकत और पाकीज़ा बात है। तो यानी घरों में बरकत और सलाम, बरकत और मतलब रहमत जो है उसका एक जरिया जो है वो भी अस्सलाम वालेकुम ही है। इसी तरह से तकब्बर और शैतानी वसवसे जो है वो इस कलिमे को दोहराने से बार बार दूर होते हैं, क्योंकि जहाँ पर दीन का जिक्र होता है, जहाँ पर अल्लाह का नाम लिया जाता है, वहाँ से शैतान जो है वो थोड़ी सी कन्नी कतराता है, दूर दूर भागता है। और फिर जब हम सही मानों में अपने होशो हवास के साथ समझते हुए कि हम कौल क्या कह रहे हैं, क्या बात क्या कर रहे हैं, जब हम सही मानों में अपने हर लफ्ज का मतलब जो है उसको गौर करके उसको जब अदा करते हैं, तो हमारे जहनों पर और हमारे जो नज़रियात और सोच जो है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो अस्सलाम वालेकुम हम जब एक रवायती जुमले के तौर पर नहीं, बल्कि जब भी हम अस्सलाम वालेकुम कहें तो उसको भरपूर अंदाज से उसका मानी मफहूम और गहराई को अगर हम अपने जहन में रख कर कहें, तो यकीनन हमारे अपने ऊपर एक नफसियाती असर जो है वो होगा, हमारे ऊपर एक रूहानी असर जो है वो उसका तारी होगा। और हम शैतान के वसवसों से और तकब्बर और इस तरह की जो दीगर बुराइयां हैं उनसे यकीनन हम दूर हटेंगे। तो लिहाजा अस्सलाम वालेकुम जो है उसको सही फहम के साथ जब हम कहेंगे कि इसका सिर्फ दो अल्फाज का मजमूआ नहीं बल्कि एक कंप्लीट पैकेज है, दुआ का भी अल्लाह के जिक्र का भी। अगर हम दूसरे मज़ाहब को देखें और दूसरी कौमें या दूसरे मुआशरों में अगर हम देखें, तो सबसे पहले यहूदी मुआशरा या यहूदी जो लोग हैं, वो आपस में जब एक दूसरे को
जब एक दूसरे के साथ जब गुफ्तगू शुरू करते हैं या एक दूसरे को जब मिलते हैं, तो वो शालूम करके कहते हैं, शालूम, शालूम। तो शालूम जो है या शालूम, इस तरह से कोई तलफ़ुज़ है उसका। तो उसका मानी जो है वो भी पीस ही है, उसका मतलब भी सलामती है। जिस तरह के खाली सलाम का मतलब सलामती है, उसी तरह से उन उसका मानी भी सलामती बनता है, क्योंकि वो इब्रानी ज़ुबान में है, और इब्रानी और अरबी ज़ुबान वो दोनों आपस में बड़ी करीब की रिश्तेदार दो, यानी कि बहनें हैं या ज़ुबानें हैं। तो इस एतबार से काफ़ी अल्फाज जो हैं उनके मिलते रहते हैं, मिलते जुलते हैं। बहरहाल उसके दो जो जो शालुम या शालम या इस तरह का जो भी तलफ़ुज़ में वो अदा करते हैं, तो उसका मतलब जो है, लफ्ज़ी मफ़हूम जो है, वो तो सलाम या सलामती ही है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम में और खाली सलाम में बहुत फ़र्क है। वो सिर्फ शालुम शालुम कहते हैं इस तरह से, लेकिन हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, या सलाम अलैकुम भी कहते हैं। लेकिन जब सलाम कहें तो उसको पूरा अच्छी तरह से तलफ़ुज़ जो है अस्सलाम अलैकुम जो है, वो हमें थोड़ा सा एहतमाम से कहना चाहिए। तो जब हम अस्सलाम अलैकुम कहते हैं, तो उसमें एक तो हमने अल्लाह का नाम जिक्र किया, दूसरा अल्लाह का नाम जिक्र करते हुए उसको एक कंप्लीट दुआ जो है वो हमने दी, कि आप पर सलामती हो, आप पर अल्लाह ताला की हिफाजत हो, अल्लाह ताला आपकी सलामती करे या आपकी हिफाजत करे। लेकिन सिर्फ सलामती कह देना या सिर्फ तुम्हारी हिफाजत कह देना, सिर्फ हिफाजत और सलामती कह देना, ये यानी कि जुमला कंप्लीट नहीं होता। तो इस एतबार से हमारा जो अस्सलाम वालेकुम है वो कंप्लीट एक जुमला है, और दुआया और अल्लाह का जिक्र से भरपूर है। इसी तरह से ईसाइयों में अगर हम देखें, तो ईसाइयों में उन्होंने बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो हैं वो इजाद कर रखे हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहते हैं, हेलो, हाय, हे करके। इस तरह से मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं उनके ज़रिए से आपस में जब मिलते हैं तो बात करते हैं। तो जबकि उनमें अक्सर मानी जो है उनका तो कोई, अक्सर अल्फाज जो हैं उनका कोई ख़ास मानी और मफहूम नहीं है, वो बिल्कुल मुकम्मल किस्म के वो जुमले हैं। और अगर कुछ मानी और मफहूम हैं भी हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग वगैरह, तो ये तो महज एक वक्त की मुनासबत से कुछ खैर सगाली के कुछ जज्बात हैं, कि गुड मॉर्निंग आपकी सुबह जो है अच्छी हो, गुड इवनिंग जो है जैसे आपकी शाम जो है वो अच्छी हो। जैसे कि ये अरबिक में भी और दूसरे ज़ुबानों में भी, सुबह अल खैर जो हम कहते हैं अरबी में, सुबह बखैर उर्दू में कहते हैं। तो इस तरह के अल्फाज जो हैं, ये दर हकीकत दूसरे जो कुछ माशरे हैं या जो ईसाई वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं की ट्रांसलेशन हम आमतौर पर कर लेते हैं। गो कि इसमें उस तरह से कबाहत नहीं है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम का मुतबादल कभी भी ये अल्फाज जो है वो नहीं हो सकते। तो अस्सलाम वालेकुम को जब हम कंपेयर करेंगे उनके ऐसे अल्फाज के साथ, तो हमें एक बहुत बड़ा फर्क जो है वो नजर आता है। तो बहर ये उनके एक तहजीब में उनको सिखाया गया है, अदब और अदलाब और अखलाक का उनका एक पहलू है, कि एक दूसरे को जब मिलो तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या इस तरह के अल्फाज, खैर सगाली के कलिमात उनके साथ शेयर करो। इसमें कोई, इसके अलावा कोई और रूहानी किस्म के कोई जज्बात जो हैं वो हमें नहीं मिलते। इसी तरह से अगर हिंदू मुआशरों में देखा जाए, तो हिंदू मुआशरे में हिंदू जो है वो आपस में एक दूसरे को नमस्ते या नमस्कार वगैरह कहते हैं। तो नमस्ते और नमस्कार का अगर मानी देखा जाए, तो नमस्ते का मानी है मैं आपको सलाम करता हूँ, और नमस्कार का मानी है मैं आपके अंदर मौजूद इलाही रूह को सजदा करता हूँ। मैं आपको सलाम करता हूँ, या मैं आपको आपके अंदर जो इलाही रूह जो है, जो इलूहियत की रूह जो है, वो उसको सजदा करता हूँ। ये दोनों कलिमात जो है, ये दोनों मानी जो है, वो इंतहाई शिरकिया और कुफरियाँ हैं। ये एक मुशरकाना तसव्वुर है, कि मैं आपको सलाम करता हूँ, इसमें भी मैं आपके अंदर सलामती ढूंढता हूँ, इस तरह का कोई मानी और मफहूम बनता है। या मैं आपके अंदर जो इस्लाम की जो रूह है या अल्लाह की रूह जो है, उसको मैं सजदा करता हूँ। ये इसका इस तरह से कुछ मानी और मफहूम बनते हैं, जो कि यकीनन एक कुफरी और शिरकिया अल्फाज भी हैं, और उसका मानी मफहूम भी है। जबकि इंसान के अंदर या किसी भी गैरुल्लाह के अंदर उलूहियत का मानना और उसके इस तरह के किसी भी तसव्वुर का करना, इस्लाम में, हमारी शरीयत में, हमारे दीन में कहीं पर भी किसी की तरह से भी इसकी कोई इजाज़त नहीं है, बल्कि बड़ी सख्ती के साथ इससे हटने का, इससे दूर रहने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। क्योंकि शिर्क एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। तो लिहाजा हिंदू मुआशरों में भी हम, बल्कि हम देखते हैं हमारे जो हिंदुस्तान में जो भाई हैं, वो आपस में
तहजीबी तौर पर या मतलब आम तौर पर इस तरह के अल्फाज जो हैं वो कर लेते हैं, लेकिन इस मारे में हमें बतौर ख़ास एहतियात करनी चाहिए कि ऐसे कलिमात जिनमें कुफरी और शिरकिया मानी और मफहूम पाए जाते हैं, इससे तो हमें बड़ी सख्ती से अपने आप को दूर रखना है। तो इसके अलावा बाकी कुछ अल्फाज जैसे कि गुड मॉर्निंग, जैसे कि मैं भी कभी सुबह अस्सलाम वालेकुम का मैसेज भेजता हूँ, उसके बाद फिर गुड मॉर्निंग वगैरह, ठीक है, अपने जज्बात का एहसास, लेकिन अस्सलाम वालेकुम जो है वो हमारा बुनियादी एक कलिमा होना चाहिए, किसी के साथ अपने आप को तारफ करने का, अपनी बात शुरू करने का, या अपने जज्बात को जाहिर करने का। इसी तरह से दीगर जो मुआशरे हैं या दीगर ममालिक हैं या दीगर तहजीबें हैं, उसमें इस तरह से और बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो अजीब व गरीब किस्म के अल्फाज हैं। सुप यू, व्हाट्सअप, गुड डे, ग्रीटिंग्स, हाय देयर, हे मैन, हे बुडी, व्हाट्सअप, हे ड्यूड, हाय ब्रदर, हे गाइस, हेलो एवरीवन, हे ऑल। इस तरह से बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के अल्फाज जो हैं वो दूसरों को मुखातब करने के लिए या उनके साथ हम कलाम होने के लिए या उनके साथ मतलब गुफ्तगू शुरू करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो अक्सर जो है, मोस्ट ऑफ द दम जो है, उनमें से अक्सरियत जो है वो बिल्कुल बेमानी और बेमफहूम है। लोग उसमें कुछ तो है लव किस्म के भी हमें अल्फाज जो हैं वो महसूस होते हैं। लिहाजा ऐसे किसी भी अल्फाज के ऊपर हमें बिल्कुल अपने जहनों से और अपनी जुबानों से हमें इसको बिल्कुल निकाल देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हमें अपने दिलों से इन ऐसे अल्फाज को अदा करने को बिल्कुल दूर रखना चाहिए, मिटा देना चाहिए हमारे जहनों से, कि हमने कभी ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल करने हैं। मानी बामानी अल्फाज हम अदा करें, और उसमें फिर हमारा दीन जो हमें सिखाता है वो अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए यकीनन दुनिया और आखिरत दोनों के लिए खैर और बरकत का और फलाह और कामयाबी का बायस है। इसी तरह से अस्सलाम वालेकुम जब हम मिलते हैं तो उस वक़्त ये इस्तेमाल होता है, जब हम जुदा होते हैं तो उस वक़्त भी अस्सलाम वालेकुम कहना जो है वो हमें मिलता है। ये जब हम हदीस में देखेंगे तो इसके बारे में मज़ीद हम देखेंगे इंशाल्लाह कि क्या इस बारे में अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है। लेकिन जुदा होने के लिए भी जो कलिमात दूसरे मुआशरों में इस्तेमाल होते हैं, जो उसमें भी टेक केयर और सी यू अगेन और सी यू सून और गुड बाय और कैच यू सून और हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, या इस तरह के अल्फाज जो हैं वो बोले जाते हैं, जिसमें भी अक्सर जो है वो या तो बेमानी किस्म के अल्फाज हैं या सिर्फ एक वक्त के मुताबिक कुछ जो है उनको उसका इजहार है, या कुछ अखलाक या तहजीब का कुछ मतलब फील होता है उसमें, लेकिन कुछ उसमें कंप्लीट पैकेज दुआ का जिस तरह से हमें हमारा दीन बताता है अस्सलाम वालेकुम, वो चीज़ उनमें मौजूद नहीं है। तो बहरहाल इन सारी बातों को अगर हम जमा करके देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमें जो सिखाया गया अस्सलाम वालेकुम कहना और इसको आम करना, ये कोई मामूली जुमला या मामूली कलिमा या मामूली दो अल्फाज का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये कंप्लीट पैकेज है, जिसके ऊपर हमें सोच विचार करके उसके उसके मानी मफहूम और उसकी अहमियत अफादियत और उसकी फजीलत और उसमें हासिल होने वाली नेकियां और सवाब और उससे पैदा होने वाले हमारे दरमियान मोहब्बत और उल्फत और मुआशरे में जो एक यकजानियत और उसमें इत्तेहाद और उसके जो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू जो हैं उनको सामने रखकर हम जब सोचें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक पैकेज जो है वो हमें अल्लाह ताला ने दिया है, हमारे दीन ने हमें दिया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसको आम करने का हमें हुक्म दिया है, नसीहत की है। तो लिहाजा हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम आपस में बात करते हैं, तो सिर्फ बात करने से हमें 10 20 और 30 नेकियां जो हैं वो आपस में जमा करते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं। जब हम अस्सलाम कहते हैं किसी को तो वापस हमें सलाम का जवाब मिलता है, तो दोनों में नेकियों का इजाफा होता है और दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे के लिए नेकियों का बायस बनते हैं या बांटते हैं। तो बहरहाल ये एक बुनियादी या कुछ अहम या इब्तदाई तरह की कुछ बातें थी जो हमारे जहनों में होनी चाहिए या हमें ताज़ा रहनी चाहिए हर वक्त, ताकि हम रोज़ाना के मामूलात में अपने मामलात को अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज से लेकर चलें। तो अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि हमें इन मामलात में अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है, फाइन ट्यून करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। इस दुआ के साथ ही हम आज का सबक जो है वो शुरू करते हैं। ये किताब सलाम या किताब या एक
कुछ चैप्टर्स का मजमूआ जो है वो 5 नंबर है इस वॉल्यूम में, जबकि इसका चैप्टर नंबर जो है वो 131 है। 131 नंबर चैप्टर जो है वो उसकी उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसमें से कुछ हदीस हैं, देखते हैं कि वो हदीस आसान सी हैं, वो आज के सबक में मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह, अगर हो सकेंगे। तो 131 नंबर चैप्टर जो है वो है सलाम करने की फजीलत और उसके फैलाने का हुक्म। सलाम करने की, अस्सलाम वालेकुम कहने की फजीलत क्या है, और इसको फैलाने का हुक्म जो है वो अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। तो इसमें सबसे पहले कुछ आयत का हवाला दिया गया है। सबसे पहले सूरह नूर की आयत नंबर 27 का तज़किरा है या कोट किया गया, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम अपने घरों के अलावा दूसरे घरों में उस वक़्त दाखिल ना हो जब तक तुम इजाज़त ना ले लो और घर वालों को सलाम ना कर लो। ये सूरह नूर में हम बड़ी तफसील के साथ हम देखेंगे, ये माशरती आदाब का बहुत ही अहम पहलू है कि जब दूसरों के घरों में दाखिल हों तो घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी है। अब दूसरे घरों से मुराद, उसमें हमारे जो करीबी रिश्तेदारों के घर हैं वो भी यकीनन शामिल होंगे। उसमें इवन कि हम अपने किसी भाई के घर या बहन के घर भी जाएंगे तो वो भी हमें वहां पर इजाज़त लेकर अंदर जाना है, और जैसे ही हम अंदर जाएं तो हमारा सबसे पहला काम जो है वो सलाम करना होना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। इसी तरह से इसके बाद सूरह नूर ही की आयत नंबर 61 का तर्जुमा हम देखते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, बस जब तुम घरों में दाखिल होने लगो तो अपने नफ्सों पर सलाम करो, ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है, मुबारक और पाकीज़ा। ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा अल्लाह ताला ने हमें अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम की सूरत में दिया है। तो लिहाजा हमें इसका एहतमाम करना चाहिए, और जब घरों में दाखिल हूँ तो घर में दाखिल होने की दुआ के बाद हमें सलाम जो है वो ज़रूर करना चाहिए, चाहे घर में कोई मौजूद है या नहीं है, चाहे आपको कोई रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा, चाहे आपके पास कोई मौजूद है या नहीं, घर में जब भी दाखिल हो तो सलाम जो है वो अस्सलाम वालेकुम जो है वो ज़रूर कहना चाहिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा भी है और अल्लाह ताला का ये हुक्म भी है। इसी तरह से सूरह निसा की आयत नंबर 86 का तज़किरा है यहाँ पर कोट किया गया, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब तुम्हें सलाम का तोहफा दिया जाए तो तुम उससे बेहतर तोहफा दो। जब तुम्हें सलाम का तोहफा दिया जाए तो तुम इससे बेहतर तोहफा उन्हें दो, यानी उन्हें लौटाओ। यानी अस्सलाम जब कहा जाए, अस्सलाम वालेकुम, तो उसको बेहतर जो अंदाज में उसका जवाब दो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अगर नहीं तो वही उन्हें वापस लौटा दो। यानी अस्सलाम वालेकुम का जवाब जो है सिर्फ उसके जवाब में अस्सलाम वालेकुम कह देना ये भी काफ़ी है, लेकिन बेहतर ये है कि अस्सलाम वालेकुम कोई कहे तो उसके साथ वरहमतुल्लाहि का इजाफा कर दिया जाए, या कोई अगर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहे तो उसके साथ वो बरकातहू के इजाफा करके उसको वापस लौटाया जाए। लेकिन अगर किसी ने कंप्लीट पैकेज आपको दिया, एक बड़ा तोहफा दिया, 30 नेकियों का किसी ने तोहफा दिया आपको, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो उसके जवाब में भी फिर 30 नेकियों का, कम अज कम 30 नेकियों का तोहफा जो है उसको वापस लौटाना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इसके अलावा कुछ इजाफी तौर पर जो अल्फाज जो हैं वो पता नहीं मजाक के तौर पर ऐड हो गए हैं या सीरियसली किसी ने ऐड किया, जन्नतुल हराम और दोज़खुल हराम, पता नहीं किस किस तरह से, वो मुझे लगता है कुछ मजाक के मामलात में होंगे। लेकिन हमें इस्लाम के मैटर में बड़ा एहतियात रखनी चाहिए, और इस तरह के कोई तंज मजाक या इस तरह की कोई बात जो यहूदियों, ईसाइयों और मुशरिकों का रवैया था उससे हमें अब एहतियात रखनी चाहिए। तो जहाँ पर हमें ब्रैकेट में बंद कर दिया गया या जहाँ पर हमें ब्रैकेट का निशानदेही कर दी गई, तो हमें उन ब्रैकेट्स के अंदर अपने आप को रखना है। तो बहरहाल अस्सलाम वालेकुम का जो कंप्लीट जुमला है वो है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और उसका जवाब जो है मैक्सिमम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहरहाल आगे सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 64 और 65 का तर्जुमा हम देखते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तेरे पास इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खबर पहुंची? जब वो इसके पास आए तो उन्होंने सलाम कहा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम कहा। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए थे, जिन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बशारत दी थी उनके बेटों की, और फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ जाने का जो अल्लाह ताला का हुक्म था वो भी उनको बताया था। ये कंप्लीट एक मुकालमा है जो कि हम सूरह ज़ारियात में
देखेंगे। तो बहरहाल फरिश्ते जब नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए मेहमान बनकर, तो उन्होंने फरिश्तों ने भी आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अस्सलाम वालेकुम कहा, उनको सलामती भेजी उनके ऊपर, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उनको उसका जवाब दिया। तो इन आयत में भी हमें अस्सलाम वालेकुम कहने की फजीलत और ताकीद और उसकी जो नसीहत है वो हमें मिलती है। और आपस में मिलने जुलने के आदाब में सबसे अहम जो कलिमा है हमारे लिए, वो यही है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें आगे बढ़ते हैं अहादीस की तरफ। और पहली हदीस जो है वो बुखारी और मुस्लिम से है, जो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, इस्लाम की कौन सी बात ज़्यादा बेहतर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम भूखे को खाना खिलाओ और हर शख्स को सलाम कहो, चाहे तुम उसे पहचानो या ना पहचानो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नसीहत है, जो कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तवस्सुत से हमें पहुंची कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सवाल करने पर उनको कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम किसी भूखे को खाना खिलाओ, और किसी को जानते हो या नहीं जानते तुम उसको अस्सलाम वालेकुम कहो, उसके ऊपर सलामती भेजो। तो ये भी एक अहम पहलू है हमारे लिए कि हम जब बाजार वगैरह में जाएं, आगे जाकर एक हदीस देखेंगे वो इसी मैटर को बड़े बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन करती है, लिहाजा इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो फवायद में लिखा गया कि याद रहे कि सलाम जो है वो अस्सलाम वालेकुम ही है, जिसको हम उर्दू में सलाम कह देते हैं, दर हकीकत वो अस्सलाम वालेकुम ही है। नमस्ते या आदाब अर्ज या शब बखैर या गुड मॉर्निंग वगैरह कहना दुरुस्त नहीं है, ये सब गलत है। इनसे ना सिर्फ के सलाम नहीं होता बल्कि गुनाह होता है, क्योंकि ये गैरों की नकाली और अल्लाह के हुक्म से एराज है। यानी कि इसमें एक इजाफी पॉइंट ये भी है कि ये दूसरों की नकाली है, ये जो दूसरी कौमें जो हैं उनको फॉलो करने के मुतरादिफ है, उनकी पैरवी करने के मुतरादिफ है। जबकि अल्लाह ताला ने तो हमें बेहतरीन कलिमा जो है वो सिखाया है, जो कि उनसे बहुत ही आला और अफजल और बहुत ही ज़्यादा मानू से भरपूर और रूहानियत से भरपूर कंप्लीट पैकेज है। तो लिहाजा हमें दूसरों के गैरों के जो कलमात हैं उनको फॉलो करने के बजाय हमें जो अल्लाह ने कलमा सिखाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी ताकीद की, हमें उसको फॉलो करना चाहिए और उसको उसका एहतमाम करना चाहिए। यानी हमें एहतमाम करना चाहिए कि हम दूसरे कलिमात को अपने ज़िंदगियों से निकालें और इस्लाम को अपनी ज़िंदगियों में दाखिल करें। इसी तरह से अगली हदीस जो है, ये भी सही बुखारी और मुस्लिम से है। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनसे कहा, जा और फरिश्तों की बैठी हुई इस जमात को सलाम कर, और वो जो जवाब दें उसे गौर से सुन, क्योंकि वही तेरा और तेरी औलाद का सलाम होगा। बस हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जाकर कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने यानी फरिश्तों ने कहा अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि, बस उन्होंने रहमतुल्लाह का इजाफा कर दिया। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फरिश्तों की जमात के पास जाओ और उनको सलाम करो। यानी ये सलाम जो है, अस्सलाम वालेकुम जो है, ये वो कलिमा है जो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया था। हमारी इब्तिदा के दौर से ही, शुरू में ही अल्लाह ताला ने जहाँ पर इंसानियत को का सिलसिला शुरू किया, वहीं से अस्सलाम वालेकुम का सिलसिला भी वहीं से जारी और सारी हो गया। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि ये कहाँ से शुरू हुआ ये लफ्ज़ और ये कलिमा जो है, और इसकी अहमियत और फजीलत जो है वो क्या है। और जब ये सलाम जो है अस्सलाम वालेकुम ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को पेश किया, तो फरिश्तों ने उसका जवाब जो है वो दिया अस्सलामु अलैका। अस्सलामु अलैकुम जो है वो जमा का सीगा है और अस्सलामु अलैका जो है वो वाहिद का सीगा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्योंकि अकेले थे, तो उस एक अकेले आदमी को जवाब जो है वो अस्सलामु अलैका के तौर पर फरिश्तों ने दिया। लेकिन हमारे पास मारूफ यही है अस्सलामु अलैकुम, तो हम अस्सलाम वालेकुम ही उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि तज़किरा हुआ कि बहुत सारी ऐसी मतलब कुछ हस्तियां वहां पर मौजूद हो सकती हैं जो जिनको हम नहीं देखते। तो बहरहाल फरिश्तों ने जवाब दिया
فرشتوں نے بھی اس کا جواب جو ہے وہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہا، تو انہوں نے رحمۃ اللہ کا اضافہ کر کے وہ سلام کو واپس لوٹا دیا، یعنی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ سوری حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے ہی یہ سنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی، اور فرشتوں کے ذریعے سے یہ سکھا دیا گیا کہ السلام علیکم کیسے کرنا ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ کیسے دینا ہے، تو آج بھی یہ ہمارے اندر اسی طرح سے مستعمل ہے۔ آگے بڑھیں اگر تو اگلی حدیث جو ہے وہ بھی بخاری اور مسلم سے ہی مروی ہے، حضرت ابو عمارہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم فرمایا۔ وہ 7 باتیں کون سی ہیں؟ بیمار کی مزاج پرسی کرنا، جنازوں کے پیچھے چلنا یعنی جنازوں میں شریک ہونا، چھینکنے والوں کی چھینک کا جواب دینا، یہ بھی بڑا اہم ایک موضوع ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ دینا چاہیے۔ بہرحال چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، اور پھر کمزور کی مدد کرنے کا، مظلوم کی فریاد رسی کرنے کا، اور سلام پھیلانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہوا ہے، اور قسم دلانے والے کی قسم کے پورا کر دینے کا تاکہ قسم کھانے والے کو تکلیف نہ ہو۔ کبھی کسی نے قسم کھائی ہے اور بعد میں وہ قسم کو پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، کوئی وعدہ ایسا کر لیا، کوئی قرض وغیرہ واپسی کا، تو اس کو پھر مدد کرنا کہ تو اس کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ بہرحال اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ اگلی حدیث اگر ہم دیکھیں، یہ بھی صحیح مسلم سے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اور تم مومن نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے اختیار کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے، اور وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ اور عام کرو۔ اس کا تذکرہ ہمیں ابھی ہم نے تمہید میں کر لیا کہ سلام کو پھیلانے اور سلام کو عام کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کیونکہ اس سے محبت جو ہے وہ آپس میں بڑھے گی، اور جب محبت آپس میں بڑھے گی تو ایمان جو ہے اس کا ایک بنیادی جز جو ہے وہ مکمل ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ ایمان نہ لے کر آؤ، اور تم مومن نہیں ہوگے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ تو ایک دوسرے سے محبت کا ایک بنیاد جو ہے وہ السلام علیکم میں چھپا ہوا ہے، تو لہٰذا ہمیں السلام علیکم کو عام کرنے کی یہاں پر نصیحت جو ہے ملی۔ اگلی حدیث جو ہے یہ ترمذی سے ہے اور یہ حسن روایت ہے، حضرت ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رحموں کو ملاؤ یعنی رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرو، اور اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں یعنی تہجد کی نماز، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ کام کرنا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، بشرطے کہ اس نے بڑی اہتمام کے ساتھ اور بڑی خلوصی نیت کے ساتھ اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ یہ سارے کام جو ہے وہ انجام دیا۔ اس میں سلام کو پھیلانا جو ہے وہ بھی شامل ہے کہ تم دوسروں کو السلام علیکم کہو تاکہ دوسرے بھی اس کا جواب دے۔ جب ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کا جواب جو ہے وہ وعلیکم السلام آتا ہے، تو کم از کم ہم نے کسی ایک فرد کو سلام کر کے اس دوسرے فرد سے واپس جواب ملا تو ایک جگہ پر تو پھیل گیا، تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت اہم ایک پہلو ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ بھی یہ موطا سے یہاں پر لی گئی ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ یہ حضرت طفیل بن ابی کعب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا کرتے تھے، ان سے ملنے جایا کرتے تھے، پھر ان کے ساتھ بازار جاتے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم بازار جاتے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر کسی کباڑیے کے پاس ہوتا یا کسی تاجر یا کسی مسکین کے پاس سے ہوتا تو وہ سب کو سلام کرتے۔ طفیل رحمۃ اللہ علیہ جو راوی ہیں اس حدیث کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بازار چلنے کو کہا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بازار جا کر کیا کریں گے؟ آپ کسی سودا فروخت کرنے والے کے پاس ٹھہرتے نہیں، نہ ہی کسی سامان کے متعلق پوچھتے ہیں، اور نہ ہی اس کا کوئی بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، اور نہ ہی بازاروں میں
किसी मजलिस में बैठते हैं, यानी बाजार में आप इस तरह की कोई एक्टिविटी तो करते नहीं, ना कोई सेल परचेज, ना किसी से गुफ्तगू, ना किसी से कोई बातचीत करना। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप यहीं रुकें, यहीं तशरीफ रखें, हम आपस में गुफ्तगू करें। तो उन्होंने जवाब दिया, ए अबू बतन। ए अबू बतन उनको उनके लक़ब से उन्होंने पुकारा, जिसका मतलब है पेट, पेट वाले, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने इस तरह से कहा। बहरहाल उन्होंने उनसे कहा हजरत तुफैल रहमतुल्लाह अलैह से कि ए अबू बतन, हम तो सिर्फ सलाम करने की गर्ज से ही बाजार जाते हैं, जो भी मिले हम उसे सलाम करें। यानी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का ये तरीका था कि वो जब बाजार में जाते थे तो किसी भाव ताव करने के लिए, किसी परचेजिंग वगैरह, शॉपिंग वगैरह, या इसका मकसद जो है अगर नहीं होता था, उनका मकसद होता था कि वो बाजार में जाएं और लोगों को सलाम करें, लोगों में नेकियां बांटें और लोगों की नेकियां जो है वो अपने ऊपर भी हासिल करें। तो किस तरह से यहाँ पर हमें सबक मिलता है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से, कि वो बाजार में जाते थे किसी दूसरी गर्ज से नहीं, सिर्फ इस गर्ज से कि बाजार में जाएं और दूसरों को सलाम करें, और फिर वापस उनको भी जो मिले तो वो भी फिर यकीनन एक सलाम को, इस्लाम को मतलब फैलाने का एक जरिया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के जज्बा जज्बा अफ़शा इस्लाम का बयान है, जो इत्बा रसूल का मज़हर है। दूसरे किसी शख्स को उसके किसी वस्वी नाम से पुकारना जायज़ है, बशर्ते कि उसे नागवार ना हो और ना ही उसकी तहकीर होती हो। किसी को किसी के वस्वी नाम से, जैसा कि अबू बतन कहकर पुकारा, वो कुछ पेट बड़ा हुआ था, तो जब उनको अबू बतन कहकर पुकारा गया या बुलाया गया तो वो उनको यकीनन बुरा नहीं लगता होगा, इसलिए उनको ऐसे लकब से बुलाया। अगर किसी को कोई उसकी कोई अंदर वसफ है या कुछ उसके अंदर कोई ऐसी बात पाई जाती है जो उसको टांट करती है, जो उसको तहकीर या नागवार गुजरती है, तो ऐसी सूरत में उसको ऐसे किसी लकब से पुकारना नहीं चाहिए। ये हमारा जो दीन जो है वो हमें इसकी तरफ भी रहनुमाई करता है। बहरहाल ये एक इजाफी पॉइंट था इस आज की मजलिस में। तो यहीं पे हमारा जो है आज का सबक जो है वो मुकम्मल होता है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अस्सलाम वालेकुम की जो बेहतरीन फजीलतें हैं और रहमतें हैं, उससे मैक्सिमम बेनिफिट दुनिया का हासिल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, और उससे फिर मैक्सिमम जो आखिरत में हमारे लिए जो डाटा बैंक में जमा होते हैं हमारे अजर, अल्लाह ताला हमें वो अजर कमाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी है, इसके साथ ही अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं मजलिस के। सबको दुआ में जरूर याद रखें, हमारा वक्त जो है वो हो चुका है। अल्लाह ताला हमारे लिए अपनी ख़ास मदद और ख़ास रहनुमाई और ख़ास आसानियाँ हमें अता फरमाए। हमारे मामलात में कुछ परेशानियाँ, कुछ मसाइल, कुछ मुश्किलात, कुछ औलाद के, कुछ सेहत के, कुछ फैमिलीज़ के, कुछ बहन भाइयों के, कुछ वालिदैन के, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्लाह ताला आसानी दे, रहमतें और बरकतें हमारे घरों में, हमारे फैमिली में नाज़िल फरमाए। हमें आपस में मोहब्बत का अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, सिला रहमी के अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।